Dear friends, in this lecture we will see the derivative of composite function or chain rule. What is the rule of composite function? If function f ab to cd is differentiable at x belongs to ab, if function f, the domain of function f is open interval ab and the codomain of f is open interval cd. Function f is differentiable in ab. Function g and function g cd to ef is differentiable at fx belongs to cd. So you can see here the range of function f is a subset of dg, right? Because the codomain of f is the domain of g. So the maximum range of function f is cd. So either Rf is equal to dg or Rf is subset of dg. That is why the composition of f and g is possible, and composition of f and g, which is called GOF, and it is differentiable at x equal to ab. So GOF, the domain of GOF is ab and codomain is ef. Because the first function is f, so take the domain of f and codomain of g. So ab to ef is differentiable at x belongs to ab. So, and the derivative of composite function GOF is equal to g dash of fx into f dash x. This rule is called the derivative of composite function or chain rule. In other way, we can say if y is the function of u, u is the function of x, then y is the function of f of x. Because y is the function of u is the function of x, so ultimately y is the function of x. It is called chain. So dy by dx is equal to y is the function of x, that is why dy by dx is equal to dy by du, because y is the function of u, into du by dx, because u is the function of x. So you can see this is the chain. Dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Ultimately y is the function of x. This rule is known as a chain rule, right? तो दोस्तों हमें
ये जो कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो नियम है, जो रूल है, उनका यूज करके हमें आगे का डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। ये थोड़ा समझने में आसान नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा और दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा कितने भी फंक्शन का कंपोजिशन हो सकता है। तो डेफिनेटली पहले बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसमें एंट्री लेना है। मैं जो प्रोडक्ट रूल है उनका यूज करके मैं आपको इसमें एंट्री दूंगा, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है y is equal to sin square x. If y is equal to sin square x, then find dy by dx. मान लीजिए आप रूल ऑफ कंपोजिशन नहीं जानते, मतलब कि चेन रूल का आपको कुछ पता नहीं, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? आप सिंपल सा ये करेंगे कि y is equal to sin square x है, तो आप लिखेंगे sin x into sin x, क्योंकि sin स्क्वायर है तो sin x into sin x. Now differentiate both the side with respect to x. So d by dx sin x into sin x. Now you can see this is fx and this is gx. The working rule of product, you can use the working rule of product, and in this way this is fx, this is gx, so take gx as outer function and d by dx of sin x plus first function is outer function and d by dx of sin x. So sin x, the derivative of sin x is equal to cos x. The derivative of sin x is equal to cos x. Sin x into cos x, sin x into cos x, it is 2 times. So we can write it is sin 2x. तो ये तरीका है, it is by using the working rule of product. बट ये आसान नहीं है, क्योंकि अब sin स्क्वायर x की बजाय sin रेज़ टू 50 आ गया, या sin रेज़ टू 100 आ गया, या sin रेज़ टू 5/2, या sin रेज़ टू 27, तो आप क्या करोगे? sin x into sin x into sin x 27 टाइम्स आप लिखेंगे, और x डिफरेंशिएट both the side with respect to x ऐसा करेंगे, और ये 27 टाइम्स मतलब 27 टर्म्स, तो बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। मान लीजिए sin रेज़ टू 3/2 है, तो और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि sin स्क्वायर है, जो इंटीजर है यहाँ पर sin स्क्वायर, तो आप sin x into sin x लिख सकते हैं। sin क्यूब है तो आप sin x into sin x into sin x 3 बार लिख सकते हैं। sin रेज़ टू 4 है तो आप sin x into sin x into sin x into sin x हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन sin रेज़ टू 3/2 है तो आप sin x into root sin x लिखना पड़ेगा, और root sin x का तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, तो ये मेथड तो नहीं चलेगी। तो अब ये मेथड अब नहीं चलेगी, तो अब क्या करेंगे? तो मेरे पास और भी 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड, y is equal to sin square x, फिर से ये सम में y is equal to sin square x, फिर से dy by dx फाइंड कर रहा हूं, लेकिन अलग मेथड से फाइंड कर रहा हूं, इस मेथड से नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं? y is equal to assume u square
where u is equal to sin x। मैंने ऐसे दो फंक्शन अलग कर दिए जो दोनों का डेरिवेटिव मुझे अच्छी तरह आता है। जैसे कि u स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव है 2u, क्योंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होता है तो 2x, यहाँ पर u स्क्वायर है तो 2u। sin x का तो मुझे मालूम ही है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो मैंने दो अलग अलग पार्ट कर दिए, दोनों सेपरेट पार्ट का मुझे डेरिवेटिव आसानी से मैं जानता हूं, क्योंकि जो 1 to 14 मेरे जो लिस्ट मैंने दिया था स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का, उसमें इस दोनों का स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा, y is the function of u, so differentiate both the side with respect to u, so it is dy by du। If d by dx of x square, then it is 2x, बट यहां पर u स्क्वायर है और जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो भी u के सापेक्ष ही कर रहे हैं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू u, सो इट इज 2u। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। Now u is the function of x, so apply d by dx both the side। And derivative of sin x is equal to cos x। Now make a chain, dy by dx, we want to dy by dx, so dy by du into du by dx। y is the function of u and u is the function of x, that is why y is the function of x, so dy by du into du by dx, it is chain rule। Now put the value of dy by du and du by dx, it is 2u and it is cos x। What is the value of u? u is equal to sin x, 2 sin x cos x, so it is the formula of sin 2x। Answer will be same, but this method is not applicable for every sum। Suppose sin का जो भी थोड़ा sin raised to 3/2 आ गया या फिर sin raised to 50 आ गया तो ये दिक्कत हो सकती है, सो ये मेथड तो हम नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, ये मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड मैंने यहां पर किया है उसमें भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इसमें फिर से y is equal to sin square x, find dy by dx। मैं अब क्या करूंगा, u v ऐसा कुछ मैं एज्यूम नहीं करूंगा, डायरेक्ट में करूंगा, सो इट इज अ डायरेक्ट मेथड। apply d by dx both the side, so I can say differentiate with respect to x both the side। Now d by dx of sin square x, you are knowing very well the differentiation of sin x, because जो 1 to 14 का लिस्ट है इसमें sin x एक फॉर्म है हमारे पास जिनका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन ये sin x नहीं है, ये sin square x है, तो इनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, हमारी डिक्शनरी में नहीं है, 1 to 14 की डिक्शनरी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू एज्यूम कर लेंगे, यहाँ तो हमने एज्यूम किया था, यहाँ सिर्फ हम मन की बात करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं वैसे, सिर्फ मन से ऐसा एज्यूम कर लो, भाव से ऐसा एज्यूम कर लो कि हमने ये यू स्क्वायर है, sin x इज इक्वल टू यू, ऐसा भाव रखो, एज्यूम नहीं करना कुछ, मन में दिल में ही रखना, दिल की बात है। तो d by dx ऑफ sin स्क्वायर x है u स्क्वायर, यहाँ पर आपको बोलना है u, लिखना है तो sin x ही, u स्क्वायर, तो क्या होगा 2u, u मतलब sin x। आपने
डायरेक्ट 2 sin x नहीं लिखा है, यहाँ पर एज्यूम किया था मन में, बराबर। तो यहाँ पर दिमाग लगाया था, यहाँ जो बात हो रही है मन से बात हो रही है, तो आपने यहाँ पर जो एज्यूम किया था तो आपको इनका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे कि u स्क्वायर मतलब u इज इक्वल टू साइन x, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू u मतलब साइन x, और साइन x का भी डिफरेंशिएशन बाकी है। साइन x का डिफरेंशिएशन अभी नहीं किया है, तो 2 sin x, sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, फाइनल आंसर इज sin 2x। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन शायद पहली बार समझने में दिक्कत होगी, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे करेंगे तो ये फर्स्ट मेथड है, ये दूसरा मेथड है, तो ये सेकंड मेथड का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन 1-2 सब मैं ऐसा ही करता हूँ, ये मेथड से भी आपको समझाऊंगा और ये मेथड से, लेकिन अंत में तो आपको यही मेथड एडॉप्ट करना है, यही फाइनल है। अगर ये मेथड आपको समझने में दिक्कत आएगी तो यहाँ पर बहुत ही लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, बहुत ही लंबा सम होता जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2। समेस फाइंड, सॉरी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो टाइप है वो टाइप 10 है। इनमें क्या करना है, फाइंड dy by dx by using चेन रूल। मतलब हमने जो अभी रूल सीखा है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का, उस हिसाब से हमें ये dy by dx फाइंड करना है। वैसे हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो फर्स्ट सम है एग्जांपल नंबर 1 5.2। फंक्शन है sin x स्क्वायर प्लस 5, नॉट sin स्क्वायर, sin x स्क्वायर प्लस 5। लेट y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5। आपको फाइंड करना है dy by dx। तो मेथड 1 पहले लो, y इज इक्वल टू sin u, क्योंकि मुझे sin x का डेरिवेटिव फाइंड है, मतलब मैं जानता हूं sin x का डेरिवेटिव मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूं। sin x का डेरिवेटिव क्या है वो मुझे पता है, तो मैं sin u एज्यूम कर लेता हूं, where u is equal to obviously x square plus 5। जो मैंने सेपरेट किए हैं दो फंक्शन, y is the function of u and u is the function of x, और ये दोनों का डेरिवेटिव मुझे 1 to 14 जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उनमें से मिल जाएंगे। बस ऐसे में एज्यूम करना है, इसका सिंपल नियम रूल यह है, ये रूल है यहाँ पर कि मैं एज्यूम कैसे करूंगा, तो जो 2 या 3 सेपरेट फंक्शन में करूंगा सभी का मुझे डिफरेंशिएशन आसानी से आता होगा। और दूसरी भाषा में मैं कहूं तो 1 to 14 जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव दिया है, इसमें से उनका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, राइट। अगर ऐसा सॉल्यूशन इसको मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली जो जितने भी फंक्शन है उनका आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और अंत में आपको सभी को जोड़ना है, राइट। y is the function of u, so differentiate both the side with respect to u। What is the derivative of sin u? It is cos u, because the derivative of sin u is with respect to u, that is why it is cos u, so it is over। Now u is the function of x, so apply d by dx both the side। डेरिवेटिव ऑफ x
square is equal to 2x and derivative of phi is equal to 0 because phi is constant. So it is 2x. So मैंने y is equal to sin u का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, y is equal to x square plus 5 का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया. अब मुझे चेन रूल का यूज करना है. dy by dx, dy by du into du by dx. आप देख सकते हैं चेन तो बनी रही है. dy by du is equal to cos and du by dx is equal to 2x. So cos u, what is the value of u? U is equal to x square plus 5 into 2x. So final answer is 2x into cos x square plus 5. Right? अब मैं शॉर्टकट मेथड लेता हूं, डायरेक्ट मेथड. सम तो यही रहेगा लेकिन मेथड में चेंज करता हूं क्योंकि अंत में तो यही सीखना है. y is equal to sin x square plus 5. यहां तो मुझे u या v ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करना है. यहां मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x because y is the function of x. अब मुझे यह सोचना है कि sin x square plus 5 का मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है. मेरे 1 to 14 के लिस्ट में इसका स्थान है या नहीं? नहीं है, सिर्फ sin x का है. तो आप यहां क्या करेंगे? x square plus 5 is equal to u एज्यूम करेंगे. अपने मन में एज्यूम करना है, बात मन की ही करनी है. फिर से बराबर है तो sin u, the differentiation of sin u is equal to cos u. u बोलना है, करना कुछ और है, लिखना तो x square plus 5 ही है. और आपने एज्यूम किया था, डायरेक्ट तो आपने लिखा नहीं था, पहले मन में एज्यूम किया था. अगर एज्यूम किया है तो उसका डिफरेंशिएशन बाकी ही रहेगा. तो बाद में d by dx of x square plus 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है, x square plus 5 है. if sin x होता तो मैं डायरेक्ट cos x यहां पर रख देता, लेकिन यहां पर क्या है? sin x square plus 5 है. सो जो कंपोजिशन है x square plus 5 sin x square plus 5 ये कंपोजिट फंक्शन है. इसमें ये हिस्सा जो भी है उनका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा. cos x square plus 5 यहां पर दोनों को मैं सेपरेटली डिफरेंशिएशन करता हूं दोनों का, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का 0 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर 2x into cos x square plus 5. तो ये डायरेक्ट मेथड है, थोड़ा शॉर्टकट है. एक और सम एग्जाम्पल नंबर 4 5.2 है एक्सरसाइज नंबर. sec 10 root x sec 10 root x y is equal to sec 10 root x. अगर मेरे पास sec x होता तो मैं उनका डायरेक्ट sec x into 10x डिफरेंशिएशन लिख देता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. मुझे क्या करना पड़ेगा? y is equal to sec u, क्योंकि मुझे sec x का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं तो मैं sec u का भी डिफरेंशिएशन लिख पाऊंगा. sec u into 10u, तो मैं sec u मैंने यहां पर u एज्यूम किया. सो u is equal to 10 root x है, लेकिन 10x का मुझे आता है. यहां पर मैं 10 root x अगर लिखूं तो 10x होता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता sec square x, लेकिन यहां तो 10 root x है तो मुझे यहां भी एक टुकड़ा करना पड़ेगा. यहां मुझे लिखना पड़ेगा 10v where v is equal to root x. अब जो
ये 3 पोर्शन हो गए हैं, सभी का डिफरेंशिएशन मैं कर सकता हूं, क्योंकि sec x का मतलब sec u का हो जाएगा sec u tan u, tan x का होता है sec square x, तो tan v का हो जाएगा sec square v, और root x का 1/2 root x। तो 1 to 14 के लिस्ट में पकड़ के मैं तीनों को ले आया। यहां पर मुझे y is the function of u, so dy by du, apply d by du both the side। Differentiation of sec u is sec u into tan u। Now u is the function of v, so du by dv। What is the differentiation of tan v? It is sec square। dv by dx is equal to d by dx of root x, because v is the function of x। What is the derivative of root x? It is 1/2 root x। Now आप चेन बना सकते हैं। According to chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? y is the function of u, u is the function of v, and v is the function of x, so y is the function of x। It is dy by dx। चेन थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन डिफरेंशिएशन तो हो गया। sec u tan u, du by dv का वैल्यू है sec square v, और लास्ट टर्म है 1/2 root x। अब u की वैल्यू अप्लाई करना है। u का वैल्यू है tan v, v मतलब root x, so tan root x। tan, यहां पर u का वैल्यू मैं पुट करता हूं tan root x, sec square v, v का मूल्य है, what is the value of v? tan v, v का है root x और 1/2 root x। You can get dy by dx by using chain rule। अब मैं सेकंड मेथड इनकी जो डायरेक्ट मेथड है उनका यूज करता हूं। y is equal to sec tan root x। y is the function of x, so apply d by dx both the side। यहां पर दिक्कत क्या है? मेरे पास sec x होता तो मैं डायरेक्ट लिख लेता sec x tan x, पर sec x नहीं है, तो इस tan root x को मुझे एज्यूम करना, tan root x is equal to u मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन वो मन में ही रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखने वाले तो tan root x ही है। तो sec x का sec u का डिफरेंशिएशन होगा sec u tan u, और into d by dx of tan root x। क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो sec u का डिफरेंशिएशन किया है, इट इज sec u tan u और d by dx of tan root x। अब sec tan root x into tan root x। अब जो इनका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, अगर tan x होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता sec square x, लेकिन यहां पर मुझे u एज्यूम करना पड़ेगा। tan u का डिफरेंशिएशन होता है sec square u, so it is into sec square u, u मतलब root x, और root x का डिफरेंशिएशन अभी भी बाकी रहेगा। so sec tan root x into tan root x sec square root x, और root x का डिफरेंशिएशन है 1/2 root x। तो इस तरह आप
फाइंड कर सकते हैं कंपोजिट डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। जो ये रूल है या फिर चेन रूल है, उनका यूज करके आप जो भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है सारे, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मैंने क्या किया है कि पीडीएफ में और भी दो सम कैलकुलेशन करके, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड ही दी है। ये मेथड मैंने सिर्फ आपको ये बोर्ड में ही प्रयोग किया है, लेकिन जो मैंने पीडीएफ में प्रेजेंट की है वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही दी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डायरेक्ट मेथड पर ही जाना है। तो डायरेक्ट मेथड आप एक बार समझ लोगे तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, और उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैंने दो सम तो मैंने कैलकुलेशन करके दिए है पीडीएफ में, लेकिन 10 सम ऐसे दिए हैं कि जिसमें ना का आंसर दिया है। सिर्फ प्रैक्टिस में आपको ये 10 सम जो कंपोजिट फंक्शन है उनकी प्रैक्टिस करके आपको अपनी ओर से सॉल्व करना है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है तो आपको अपनी ओर से सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ओके।